Okay. So first very basic thing is, if we try to plot PV डायग्राम, ठीक है, PV कर्व, PV कर्व for all the gases and STP or room temperature conditions. Some deviations. Some of the gases like helium, neon, hydrogen used to follow the ideal PV is equal to constant curve. But other gases like CO2, ammonia, SO2, etc. were found to deviate significantly from ideal PV is equal to constant curve of Boyle's law. ठीक है? सर थोड़ा ओपन डन सर. So it was this observation or this experimental observation which led to discovery of real or led to distinction of gases into two categories. ठीक है?
The one where called or termed as real gases, the other were termed as ideal gases, or two categorization. The curve used to look something like this. ये अगर आइडियल गैस का है, this this corresponds to our ideal gas. ठीक है, हमारा रियल गैस जो होता है, that goes something like this. एक सेकेंड. सी, इसका नेचर भी पैराबोलिक ही होता है, बट it goes past below the ideal line curve in lower pressure regime. ठीक है, प्रेशर जब कम रहता है तो सॉरी, हाँ, हायर वॉल्यूम में प्रेशर यहाँ पर ज्यादा फॉल करता है रियल गैसेस के केस में, दैट इज व्हाट वी कैन से. और हायर प्रेशर पर जब रहते हैं हम, व्हेन द वॉल्यूम इज स्मॉल, द रियल गैसेस आर गोइंग टू डिस्प्ले व्हाट, अगर सेम स्मॉलर वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो रियल गैसेस आर गोइंग टू डिस्प्ले हायर प्रेशर कंपेयर टू आइडियल गैसेस. हायर वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो क्या होगा, यानी एक्सपैंडेड वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो दीज रियल गैसेस आर गोइंग टू शो द लो प्रेशर कंपेयर टू द आइडियल गैसेस. ठीक है, इज इट ओके? ये ऑब्जर्वेशन जो है, या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको ये वेरिएशन जो है प्रेशर वॉल्यूम का, ये क्या स्टेट करता है? एट लो प्रेशर, या फिर इधर से देख सकते हैं, एट लो प्रेशर real gases, at low pressure real gases will have smaller volume compared to ideal gases. Am I right? At low pressure real gas will have lower volume occupancy than ideal gas, but at high pressure it is
reversed, that is ideal gas will occupy lower volume than real gases. ठीक है, आई थिंक एक काम करता हूँ मैं, real gas, this is a real gas. ठीक है, alternatively this can also be said that at a low volume ideal लो वॉल्यूम, किसका प्रेशर कम होगा किसका प्रेशर ज्यादा होगा, आइडियल गैस विल सो लोअर प्रेशर at low volume ideal gas will display lower pressure than uh, real gas and at higher volume. That is upon expansion of same mass of the gas we have real gases, so greater pressure than than ideal gases for same volume occupancy. ठीक है, it was this PV curve or Boyle's law curve which lead to further investigation that ठीक है सारे गैसेस जो है वो आइडियल फॉर्म में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, राइट, दिस ऑब्जर्वेशन further
states that all gases do not follow do not follow PV is equal to nRT, the ideal gas law, always. ठीक है. The details were further investigated with the help of few things or few more graphs. ठीक है. That is what we are going to observe or we are going to study right now. ठीक है. There is a term called uh, Z, the compressibility factor. ठीक है. So we are going to understand that, or I'll try to make you understand that. And Z के वेरिएशन, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर ही मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ what makes them real. I mean, what is that which makes them different from ideal gas. ठीक है. And then we will further investigate other things. Then we'll look at the Z parameter and other graphs as well. So upon detailed understanding, it was finally understood that, or through detailed investigations, it was finally understood that or we can say the gases which deviate from ideal gas behavior. आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएट किया मतलब आइडियल गैस इक्वेशन से डिविएट किया. ठीक है. इक्वेशन से डिविएट किया मतलब बिहेवियर से भी डिविएट किया, बिहेवियर से डिविएट किया मतलब इक्वेशन से भी डिविएट किया. राइट. डिविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर were termed as real gases. ठीक है. The primary reason for gases to behave real are: number one, the existence
of attractive forces between gaseous particles in form of weak van der Waal forces. ठीक है? And the second primary reason is the gaseous particles are not volumeless, volumeless or zero volume entity. 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 The gaseous particle behave volumeless. Gaseous particles behave volumeless or zero volume सर एक बार एकदम नीचे का दिखा दीजिए ना, लास्ट पेज का। एक सेकंड। डन सर। Till the time each gaseous particle has volume or free volume has free volume available or has free volume के बदले has volume available for its free movement as volume slash space available for its free movement, free random movement, random movement is much
larger than its own वॉल्यूम। ठीक है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन क्या है कि पार्टिकल का वॉल्यूम अगर ये है और इसके लिए अवेलेबल फ्री वॉल्यूम अगर इस रेंज में है, ऐसे है, इतना बड़ा है, एक पार्टिकल है और फ्री वॉल्यूम इसके लिए इतना अवेलेबल है, ये रियल साइज में मैं बोल रहा हूँ, तो इसके वॉल्यूम को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं या काउंट नहीं कर सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर दूसरे कंडीशन में हमारा बॉक्स का साइज जो है या अवेलेबल फ्री वॉल्यूम इतना ही रहता है या इससे भी कम रहता है और ये साइज है हमारा रियल साइज है पार्टिकल का, अब भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम। यहाँ पर ऐसे कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, शायद 100, 150, 200। यहाँ पर ऐसे कितने, दूसरे वाले केस में ऐसे कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, द नंबर्स आर गोइंग टू बी फ्यू, मे बी 10, 15। सो और भी छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी कर देंगे या रैंडम मूवमेंट के लिए उनके और कम वॉल्यूम रहेगा अगर फ्री, तो उनका वॉल्यूम कंपैरेटिवली सेल्फ वॉल्यूम जो होगा फ्री वॉल्यूम के कंपैरिजन में अब बिल्कुल ही नेग्लेक्ट नहीं हो सकता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एंड इट इज एट दिस जंक्चर when the gases start behaving real. Wait for a minute. सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। अरे हाँ, और पता नहीं कैसे गिरा है ये, रात को आते हैं कुछ घुमाने के लिए लेके जा रहे थे मुझे, भी फोन करेंगे। Is it okay? We understood this? यस सर। Okay. Now सर एक मिनट ऊपर कीजिए। in accordance to point 1 and 2, पॉइंट 1 का इम्प्लीकेशन क्या होता है और पॉइंट 2 का इम्प्लीकेशन क्या होता है, ठीक है? नोट कर लिया हम लोगों ने? सर एक मिनट। डन सर। वेरी गुड। सी द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे फर्स्ट वाले का इम्प्लीकेशन ये होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से, ठीक है, अब जैसे ये पार्टिकल है और एक और पार्टिकल इसी टाइप का यहाँ पे है, ये रैंडमली इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और ये पीछे वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी के बारे में बोला जा रहा है ना, दो वीकर बट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पार्टिकल की टेंडेंसी टू कोलाइड विथ वॉल, विल दैट डिक्रीज? पहले जिस फोर्स के साथ या जिस वेलोसिटी के साथ कोलाइड कर रहा था ये पार्टिकल या जिस मोमेंटम के साथ कोलाइड कर रहा था, वो कम हो जाएगा क्या? Am I making sense? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, वॉल से कोलाइड करने वाले हैं और पीछे से हमारे किसी फ्रेंड ने हमें पकड़ लिया, तो हमारा इम्पैक्ट ऑन वॉल क्या होगा? स्लोअर, राइट? अगर उसने नहीं पकड़ा होता तो चोट ज्यादा लगती,
एम आई राइट? है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज हो रहा है, ये दौड़ रहा है बॉल की तरफ, जोर से टकराता, पीछे वाले ने इसको अपनी तरफ थोड़ा पुल कर लिया तो ये धीरे से टकराएगा, राइट? ब्रॉडर टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा? कम मोमेंटम के साथ ये टकराएगा, तो प्रेशर जो फाइनल इसको नॉर्मल कर, जब यहाँ पे फोर्स कुछ नहीं था, उस कंडीशन में जो प्रेशर ये डेवलप करता यहाँ पर कोलाइड करके, क्योंकि पार्टिकल कोलाइड जो करता है उसी से प्रेशर क्रिएट होता है। कॉलिजन ऑफ पार्टिकल विद द वॉल इज द रूट कॉज ऑफ pressure inside the system, gaseous system, right? यस सर। काइनेटिक थ्योरी में हमने ऐसे ही पढ़ा था ना, collision of particles with the wall is root cause of pressure in the gaseous system, right? और यहाँ पर दो चीजें होती हैं, pressure is going to be directly proportional to momentum transferred per collision, right, into number of collisions per second or collision frequency. Am I right? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। ठीक है, अभी क्या है, इस अट्रैक्शन की वजह से इसका मोमेंटम, तो वेलोसिटी कम हुआ यानी मोमेंटम भी कम हुआ, तो मोमेंटम ट्रांसफर पर कॉलिजन इज गोइंग टू डिक्रीज, साथ में कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी भी जो होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये थोड़ा स्लो मूव करने लगा है इन द सिस्टम, दिस पार्टिकल हैज स्टार्टेड मूविंग स्लोली अ बिट, इज इट ट्रू? अरे हर टाइम पे ये तो कुछ ना कुछ पार्टिकल से अट्रैक्शन में ही रहेगा ना, तो इट इज नॉट ओनली कि जब वॉल के साथ कोलाइड करना है तभी इसको पकड़ा पीछे से इसके दोस्तों ने, वो हमेशा पकड़ के रख रहे हैं, तो इसकी फ्री मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो जा रही है, या इसी के नहीं सबकी कम हो जाएगी, ये भी अपने दूसरे लोगों को, साथियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उनकी भी मोशन इम्पैक्ट होएगी। इज इट ओके? यस सर। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर कॉलिजन will get impacted by a quantity called, maybe we can call it delta V or something like that, and actually उसी से हमारा ये आता है आइडियल, सॉरी, रियल गैस इक्वेशन आता है और वैंडरवाल इक्वेशन आता है, ठीक है? और उसमें हमारा ये रहता है कि वॉल्यूम, सॉरी, प्रेशर जो है, ये प्रेशर इज, मतलब प्रेशर डिक्रीज जो होता है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना हमने मोमेंटम ट्रांसफर किया पर कॉलिजन और फ्रीक्वेंसी जो है उसका। सो दिस प्रेशर और चेंज इन प्रेशर इज गोइंग टू बी, ये मोमेंटम ट्रांसफर्ड किस चीज पर डिपेंड करेगा, कितने पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम,
जो इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन or the momentum transferred for collision will reduce proportionally to the number of particles per unit volume available in the system. Not only this, the collision frequency will also reduce proportional to the number of particles per unit volume available in the system. N by V. ये प्रेशर जो होता है, यहाँ पर जो प्रेशर दे रहे हैं हम, दिस इज रिडक्शन इन प्रेशर, और डेल्टा पी रिडक्शन इन प्रेशर, compared to ideal gas is directly proportional to N by V into N by V, or delta P is equal to N square by V square into A. This A is constant of proportionality, also known as van der Waal gas constant. ठीक है, ब्रैकेट में अट्रैक्टिव नेचर. Anyone is saying something? I'm not able to hear it properly. Hello, sir. Now can you hear me? Yes, now I can hear you. Yes, tell me. Yeah, so could you please scroll up? I need to copy something. Yes, I will scroll up. I know. Is it visible? Yes, sir. Okay.
Done, sir. Thank you. Here I would also like to point it out, or rather to discuss a value for different gases are different the factors on which value of A for different gases depend on number one, electrostatic forces of attraction, that is weaker van der Waals forces. ठीक है, वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? We have listed them out. Dipole induced dipole, right? Dipole, फिर ion induced dipole, and last one is induced dipole, induced dipole. Induced dipole, induced dipole. ठीक है, ये तीनों को हम लोग वैन डर वाल फोर्सेस, वीक वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर में काउंट करते हैं, और ये वीकेस्ट होता है, राइट? These are also known as London forces, right? Or dispersion forces. London force. तो one is electrostatic force of attraction. ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि डाइपोल कितना स्ट्रॉन्गर बन रहा है. जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनेगा उसमें अट्रैक्टिव लेवल जो होगा वो ज्यादा रहेगा. ठीक है, जैसे SO2, CO2. SO2 में पॉसिबिलिटी है ये कि ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कंपेयर टू CO2. ठीक है, डायपोल मोमेंट ज्यादा है SO2 का नेट लेवल पे, इसकी वजह से. और भी बाकी सारे केसेस के हम लोग देख सकते हैं जहां पर डायपोल मोमेंट्स वगैरह ज्यादा रहेंगे, वहां पर we will have greater forces of attraction and so on so forth. अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रही है, मतलब उसके बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज अनदर फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर और मास फैक्टर. ठीक है, जिसका मास ज्यादा रहेगा, मास फैक्टर और इनर्शिया फैक्टर. इनर्शिया फैक्टर, तो जिसका इनर्शिया फैक्टर ज्यादा रहेगा उसका ये क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू ज्यादा रहेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस का कांस्टेंट जो होगा वो ज्यादा होगा. दैट इज व्हाट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड आल्सो. ठीक है, शुड आई मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज? Yes, sir.
नाउ डेल्टा पी को हम डेल्टा पी हमारा क्या है, डेल्टा पी इज पी आइडियल माइनस पी रियल, ठीक है, प्रेशर ऑब्जर्व्ड इन और प्रेशर observed in ideal gas एंड पी रियल क्या है, प्रेशर ऑब्जर्व इन रियल गैस। ठीक है, जनरली इसको पी रियल या इसको ही पी ऑब्जर्व भी बोलते हैं, और also referred as P observed। अब इसके वाले को ऑब्जर्व क्यों बोलते हैं, ठीक है, पी रियल को ही पी ऑब्जर्व क्यों बोलते हैं, देयर इज अ सिंपल लॉजिक, कोई भी गैस या तो रियल होगा या फिर आइडियल होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही टाइम पर रियल भी रहेगा और आइडियल भी रहेगा, ठीक है। तो आइडियल वाला ऑब्जर्वेशन जो करते हैं हम, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कोई आइडियल गैस लेकर के, क्योंकि गैसेस के नेचर के ऊपर उनका प्रेशर या वॉल्यूम डिपेंड नहीं करने वाला है, उनका प्रेशर एंड वॉल्यूम किस चीज पर डिपेंड करने वाला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन पर और टेम्परेचर पर, राइट ना, एनआरटी बाई वी। तो यहां पर कहीं से भी नेचर ऑफ पार्टिकल नहीं आता है, इट इज ओनली व्हेन द रियलिटी कम्स इनटू पिक्चर the nature of gases starts influencing or the nature of particle starts influencing the pressure or the volume, vice versa, right? Until and unless the reality or the interactions comes into the picture, if the interactions between the particles are nullified, तब तक आइडियलिटी जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, और आइडियलिटी जब तक कंट्रोल कर रहा होता है चीजों को, या आइडियल कंट्रोल्स में जब चीजें रहती हैं, तो नेचर ऑफ पार्टिकल इज इररेलेवेंट, राइट। यानी मीथेन अगर आइडियल बिहेव जब तक कर रहा होगा तो मीथेन का वॉल्यूम या प्रेशर और जितना रहेगा उतना ही हीलियम का भी रहेगा अंडर सिमिलर कंडीशन। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अरे इट्स लाइक 5 मोल ऑफ हीलियम ले या 5 मोल ऑफ मीथेन ले, ठीक है, दोनों का 5 मोल्स अगर लेते हैं और टेम्परेचर मान लो 900 केल्विन हमने किया, तो 8.314 इंटू 900 केल्विन, या फिर ठीक है इसको 0.0821 कर लेते हैं, 821 इंटू 900 केल्विन, और वॉल्यूम मान लो हमारे पास है 10 लीटर, ठीक है, तो प्रेशर दोनों के लिए ही सेम ही रहेगा ना, it's not going to be different for helium or for methane। बट जब हम रियल गैसेस के डोमेन में जाएंगे तो हीलियम के लिए प्रेशर जो रहेगा वो अभी भी आइडियल गैस वाला ही रहेगा, राइट, बट मीथेन का प्रेशर जो होगा वो शायद थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। वॉल्यूम को और कम कर देंगे तो हीलियम जो होगा अभी भी आइडियल की तरफ बिहेव करता रहेगा, जबकि हमारा मीथेन जो होगा दैट माइट स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स रियल गैसेस एंड प्रेशर उस केस में इसका कम हो जाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी आइडियल माइनस पी रियल,
P real is also known as P observed, ठीक है, P observed या फिर many a times observed के साथ साथ इसके लिए वैल्यू जो होती है वो हम यूज करते हैं P ये क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, P observed या P experimental. ठीक है, therefore P ideal is equal to P real plus delta P.